Hello, hi, welcome, namaste. I'm Preeti Sajdeva from Parenting with Preeti. And as you all know that I have started the talk show Joyful Journey, Your Path to Happiness. So today I have again a very nice guest with me, Mrs. Bela Sharma ji. Thank you so much, ma'am, for coming and accepting my invite. Pleasure is all mine. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you, Preeti. Thank you, ma'am. Thank you so much. My pleasure too. So before we dive into the topic, let me introduce ma'am that Mrs. Bela Sharma ji is a renowned educationalist, entrepreneur, and certified wellness and parenting coach. With a rich legacy in a scientific industry, she uses her words to heal and transform perceptions. As a prolific author of two books, she guides many on their journey of self discovery. Mental health is her topmost priority, and she spreads awareness through podcasts and free workshops, helping others achieving optimal well-being. Bela ji is dedicated in reaching and healing as many people as she can do it. Thank you so much, ma'am, for coming. And it's a great profile I have read. I'm so blessed to have you. Thank you so much for your nice words. Thank you. Thank you. My pleasure. So as I have told you that ma'am is there in unki mental health is a topmost priority for her. So today we are going to dive into the topic, her wellness journey, self-care talk. So my first question to you ma'am, that what is self-care? हम लोग बात तो करते हैं सेल्फ केयर की सेल्फ केयर करना चाहिए बट ये सेल्फ केयर होता क्या है? Self-care. Yes. It's a very deep thing actually. We do not take care of self-care. What is self-care? We people actually do not know what self-care is. And self-care is ignored. I would like to bring it here, like from the olden time, from there is lot of pressure of society and other factors are also involved that we have not learned to love ourselves and take care of ourselves. Self-care starts with self-love. When you don't love yourself, you don't take care of yourself. So once you start loving yourself, you really fall in romance with yourself, with your, then you start caring yourself. So self-care is everything about yourself, whatever you like for your physical, mental, emotional, financial, so many factors are involved in that. For yourself, that gives you happiness for your wellness. I feel like that. तो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन मतलब एक सेल्फ केयर की बात करो तो आपने तो एकदम इतने मतलब सिंपल वर्ड्स में समझा दिया कि सेल्फ लव है सेल्फ केयर। अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे दैट मीन्स वी आर केयरिंग टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम अपने ही बारे में नहीं सोच पाएंगे तो हाउ वी विल फेस द वर्ल्ड और हाउ वी विल सी द चैलेंजेस व्हाट आर कमिंग टू Yes, अस। it starts from awareness. We are not having awareness about to self-care. Like we do everything. Specifically, I mostly talk about women. That is my target audience because they take care of everybody. You're not taking care of yourself, and that awareness is not there. Once you get aware, you start loving yourself. Then you know how to take care of yourself. Then there are so many things, so many tools, simple also. You can start it simply also. But the first thing is awareness. You bring awareness of self-care and self-love. राइट। That's most important. So sweet of you. Such a wonderful words you have given. और सिंस आपने ये बात करी अवेयरनेस की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी जैसे कि हम विमेन की बात करते हैं दैट दे हैव मतलब पहले के टाइम पे जो देखा जाए तो गर्ल चाइल्ड को थोड़ा अलग ही उससे देखा जाता था। देन Right. उनका स्कूल, देन उनका कॉलेज, फिर उनकी शादी, फिर बच्चे। तो एक पूरी लाइफ की जर्नी उनकी इस तरीके की जाती थी जो ब्रिंग एंड ब्रॉट अप जिस तरीके का उनका रहता था। तो आप उन Right. स्टेजेस के बारे में कुछ बताइए कि कैसे हर स्टेज पे विमेन जो है अपना सेल्फ केयर का ध्यान रख सकती है।
रख सकते हैं। जो उनकी सेल्फ केयर की जर्नी जो है वो स्टार्ट तो पहले पेरेंटिंग से होती है। कुछ मिस्टेक्स तो पेरेंटिंग में हो जाती हैं, जब हम गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड को डिफरेंशिएट कर देते हैं कुछ चीजों में, अनकॉन्शियसली करते हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से प्यार नहीं होता, ये पुराने टाइम से ही चला आ रहा है। गर्ल्स को ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं कि तुम थोड़ा धीरे बोलो, तुम आराम से बात करो, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कों को ही ऐसा करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, इन चीजों से उनमें इनसिक्योरिटी आती है। इनसिक्योरिटी आती है, ऐसी फीलिंग आती है कि आई एम नॉट गुड इनफ। ये फीलिंग उनमें शुरू से ही डाल दी जाती है। और वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, दे फॉलो सम पाथ, दे आर फॉलोइंग देयर पेरेंट्स, फिर देन दे आर लुकिंग एट देयर हस्बैंड, एंड देन they are taking care of their children, and they think this is their duty to do that. And most of the ladies I've seen, they are doing it most happily. They happily say that मेरा घर तो मेरे बिना नहीं चलता, मेरे बच्चों का तो मेरे बिना नहीं चलता। दिस इज दिस इज नॉट गुड। क्यों नहीं चलता? आपने उनको इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनाया? आपको अपना भी टाइम लेना चाहिए। यू शुड टेक योर टाइम। आपको टाइम क्यों नहीं चाहिए? और तभी ऐसा होता है कि आफ्टर 30 देयर हेल्थ डिओटेट्स, एकदम से डिओटेट होती है हेल्थ, क्योंकि उन्होंने अपने खाने का भी ध्यान नहीं रखा, अपने बॉडी से भी इतना काम लिया है जितना उनको नहीं लेना चाहिए था। तो एकदम से वो चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ यू देन। यू, योर बॉडी, योर सोल, दैट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप मदर अच्छी रहेंगी ना, तो मदर ही बच्चे को भी अच्छा बनाएंगे। देखो, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि बोल्ड मदर ही बोल्ड बच्चे बनाती है। एक टिमिड मदर ना बच्चों का एजुकेशन भी वैसा ही कर देती है। अगर वो खुद दब दब के रहते हैं तो बच्चे भी वैसे ही निकलते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि दे आर, बच्चों में बिल्कुल ऐसे होते हैं, मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, वो माइन्यूटली आपको वॉच करते रहते हैं। देर इज नथिंग कि आपको उसको उनको सिखाना ही है, करना कुछ है और सिखाना कुछ है, डजंट वर्क। जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, कुछ कुछ बच्चे उसमें से ले लेते हैं, कुछ जीन्स से लेते हैं, कुछ आपकी मॉडल से लेते हैं, जो आप मॉडल करते हो। Right, right, right. That's another topic. Is going to another different topic. We can some other time talk about that. फॉर श्योर। एंड आपकी इन बातों ने ना एक चीज मेरे को भी याद दिलाई विच आई कैन रेजोनेट इट, कि जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, शी वाज क्वाइट इंट्रोवर्ट। और उसके घर पे मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्शन कह लीजिए या उस टाइम का सोसाइटी फैक्टर कह लीजिए कि पेरेंट्स का हो रहता था कि बाहर नहीं जाना, घर पे बैठो, जैसे आपने बोला धीरे बोलो। और लड़कियों को बारबी डॉल्स दे देते हैं खेलने के लिए, बॉयज को यू गो एंड प्ले विद द बाइक्स एंड ऑल रोबोट्स और इस टाइप की चीजें। क्यों? क्योंकि उनको बोल्ड बनाना था। और फिर आप कॉलेज लाइफ में गई वो मेरे साथ, तो देन शी वाज लाइक कि बाहर घूमने नहीं जाना। क्यों भैया? सोशलाइज नहीं होना। और आज मैम आप मानेंगे उसकी स्टेज ऐसी है कि एक तो वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाती, दूसरा That's ये right. ड्यूटीज जो आप बता रहे हैं ना कि कभी फैमिली, कभी बच्चे, कभी हस्बैंड, फिर पेरेंट्स, फिर इन लॉज, फिर ये, वो करते 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 उसने अपनी फैमिली को ही अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया। ऑलरेडी डिपेंडेंट बन चुके हैं अनइंटेंशनली, जो उसको पता भी नहीं लगता। सो पता भी दिस नहीं लगता। थिंग आई हैव टोटली रेजोनेटेड कि मतलब इतना डीप डाउन भी इफेक्ट हो सकता है कि अगर आप फाउंडेशन स्टेज पे ही गर्ल्स को बॉयज के साथ अगर इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, तो आगे जाके लॉन्ग टर्म इफेक्ट उनके जो है फिर वो वर्स्ट हो जाएंगे, विच कांट बी रिपेयर्ड। विच कांट बी रिपेयर्ड। आप अगर आज की डेट में उस लड़की को बोलेंगे ना कि जाके बेटा वो सामान ले आ बाहर से या कुछ ले आ, शी इज स्कैर्ड। अच्छा मैं जाऊंगी तो कैसे होगा? इनसिक्योरिटीज, सेल्फ डाउट, ये सब क्रिएट हो जाते हैं, और वो उनको ऐसा लगता है कि वी आर नॉट गुड इनफ फॉर द सोसाइटी एंड ऑल। और इसी इनसिक्योरिटीज की वजह से कुछ बच्चे बहुत, मतलब उनको चाइल्डहुड ड्रामा हो जाता है, वो लोग अपना डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बिकॉज वो फेस ही नहीं कर पाते सोसाइटी को। तो हमें बच्चों को ऐसा नहीं बनाना। फॉर द होल लाइफ वी आर नॉट गोइंग टू स्टे विद देम। हम ऐसा करके उनको, उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं।
ठीक है ना, ऐसा बनाएंगे उनको, चाहे गर्ल चाइल्ड है चाहे बॉय चाइल्ड है, गर्ल्स के साथ ज्यादा बेइंसाफी थोड़ी हो जाती है, तो उनको पुल करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारी लेडीज हैं, तो उनको वो अपने उस कोकून में हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी इन दैट कोकून। उनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे मेरे हाथ का ही पराठा खाता है मेरा बेटा। तो सो व्हाट इज गुड इन दैट? कभी उसको बाहर जाएगा, कभी उसको बाहर रहना पड़ेगा, उसको टेस्ट नहीं आएगा, इज इट समथिंग गुड? नो, मेक देम इंडिपेंडेंट। और आप भी अपने मी टाइम लीजिए जो आपके लिए चाहिए। आफ्टर ऑल आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, उसकी केयर कौन करेगा? आपने कभी सोचा है कि आप इत्मीनान से बैठ के अपनी कभी अपनी कॉफी पिए? नहीं, उसका ये बनाना है, उसका ये करना है। मोस्ट हैप्पीली आई हैव सीन लेडीज डूइंग दैट। So awareness is most important. When awareness comes, then they start doing that. So I've written 2 books on that also, self Wow. care. जो मेरे को this is something you have seen in the society. This is something with which problems people have been coming to me, and I realize that there is lack of awareness. People are happily doing what they should not do. They should learn. They have their own life, they should live their life. So how to change? Change भी it's difficult to bring change. बहुत पक्का हो गया है सब कुछ. So bringing the change is also very difficult. So there are tools to do that. From simple things you can start doing that, and that change you will love that change. When you will bring the change, you will love that change. Then starts the journey. लवली लवली लवली। एंड मैम जो आपने ये 2 बुक्स की बात करी है ना, ये उसका लिंक मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू रीड दैट। मीन्स इट्स अ Sure, ग्रेट sure. I would अचीवमेंट like दैट। everybody should they read those books, and this is free on Kindle. Anybody can read that. I'll share the link. And I'm going to post the links on the media also once I'll be shooting up this video on that। तो मैं उसको को भी देखूंगी, और आप लोग भी इसको मतलब पढ़ के देखिएगा कि what challenges मैम has gone through and how she has come out of it। और अब हम आगे इसी के बारे में बात भी करने वाले थे कि जैसे आपने इतना कुछ बताया सेल्फ केयर के बारे में, तो कुछ आपकी पर्सनल स्टोरीज जहां आपने ये देखा है कि किस टाइप से ये चैलेंजेस आए हैं और कैसे आपने उनके अंदर बाउंड्रीज सेट करी। मतलब ऐसे कौन से बैरियर्स रहे हैं आपकी लाइफ में जिसने आपको रोका है कि हाँ मैं सेल्फ केयर में नहीं जा सकती, एंड हाउ यू ओवरकम, मतलब आपने कैसे उसको Yes. overcome किया? I think most of the people come through this, and whatever you're learning is what you go through, you learn through actually. सो बहुत सारी चीजें होती हैं जो लाइफ में आती हैं, आप उनको कैसे डील करते हो, उनसे कैसे हील करते हो, दैट्स योर लर्निंग इन योर लाइफ एक्चुअली. सो आई वाज आल्सो वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड. I got married in 22, and my husband met with 2 accidents. So I thought कि then I have to support him, and because of good education we did it. We made a good legacy in scientific industry also. Then my kids were also grown well, they are well qualified and all. I would like to say qualification matters a lot. So your mental level get high when you are qualified. You understand the things well, but still, if I would like, again, I would like to say to the women who are not very much qualified, still they have different skills with them. So don't feel bad that I'm not qualified. So what can I do? I just can't do anything. There are so many skills which you can learn, which you have actually learned, like swing, paper making, anything, anything that you like to do. That can become your passion. And passionately, when you start doing something, that can become your profession also. Turn your passion into your profession. Financially, when you get well, you gain so much of confidence. Start doing that. Start doing passionately. First, it will give you happiness. Second, it will give you confidence. And one day you will become financially independent. So, there is no special day to start anything. So you can any day make it the first day of your passion. So this has shown that learning is a lifelong process, you can start off with any Lifelong point of time। process. Right। Yes. एंड फर्स्टली तो हैट्स ऑफ टू यू, मतलब इतनी यंग एज में आपने इतना कुछ देख लिया
और मतलब मेरे तो गूज बम्स खड़े हो गए, मैं आई कांट इवन रिपीट किया जिस स्टेज से आप गए होगे ना, आई कैन रेजोनेट इट किस टाइप से आपने वो सब चीजें की होंगी. But it's good that now you have come at this point of level that you are a smiling face with the confident children and the confidence is shown on your face too. और आपको देख Thank के you. लगता है आपके बच्चे कितने हैं? I have three kids. My two daughters are married, ओ and my son is also well settled. All are out of country. All my kids are out of country. But they are very well settled, well educated, well settled. superb, superb means you have done the duty of a wife also, of a Correct. daughter-in-law Yes. also, of a mother Yes. also, and now आपको ऐसा लगता होगा कि चलो मेरा एक जो है लाइफ का वो जैसे कहते हैं ना पिनेकल खत्म हो गया कि हाँ मैंने अपनी अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर ली खत्म. That's one. Right. Right. And That's the way people have been coming to me, asking for guidance and all. And then my father had a cancer, lungs cancer. So we have come to know on when he was on fourth stage. So we did a lot. I wanted to say this that you should take care of your parents also, because lots of things comes to you as manual from your parents. It's not that you follow everything what your parents say, because I give guidance to parents also कि आप अपने rules और regulations के साथ rigid मत होइए. You should keep yourself also on a learning phase. I say myself about myself that I am a learner. Today also I am a learner. I learn everything from a small child also, because I love that. If you are learning every day, then you are growing also every day. So lots of things we can learn from younger generation. So give them encouragement for that, give them credit for that, so that they also give you the credit. You're not giving credit to the younger generation. आपने अपने एक रूल रेगुलेशन बना लिया, आपको लगता है ये फॉलो नहीं करते, ये गंदे बच्चे हैं. आपको वो बच्चे अच्छे नहीं लगते, लेकिन बच्चों को भी लगता है कि कितने रिजिड हैं पेरेंट्स, ये हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं. तो यू कैन ऑलवेज अप्रिशिएट देयर न्यू आइडियाज, देयर न्यू इनोवेशंस. ऑलवेज से अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छा है, ये हमारे टाइम में नहीं था, ये तो हमने तुमसे सीखा. आप एक बार उनसे कह के तो देखिए, फिर वो आपके पास बैठेंगे कि आप हमें बताओ आपका क्या आइडिया है. दैट्स द वे communication make relationship good. right. When you are rigid about something, you are not communicating, then relationships खराब हो जाते हैं, So तभी खराब हो जाते हैं. तो आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे ऐसे अगर आप अच्छी बातें करेंगे, अपने सबको क्रेडिट देंगे और अपने आप को भी क्रेडिट देंगे, तो अच्छे रिलेशनशिप चलेंगे. बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को क्रेडिट देना तो बहुत जरूरी है. एंड फॉर दिस आई बहुत एम गोइंग टू गिव यू द क्रेडिट कि जैसे आपने अपने फादर थैंक यू सो को मच. इतना सपोर्ट किया एंड मतलब कैंसर के बारे में बात की जाए तो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग. अगर वो भी लास्ट स्टेज पे पहुंच जाए तो उसमें फैमिली का So we have स्टेबिलिटी. been there for him always. We brother sisters were there. He was in Delhi. So we have been regularly going and giving him all the happiness. At that time, phone were not so popular. He has been saying, no, मुझे कोई call नहीं करता. I purchased a new phone for him. वाओ. Then I gave him the phone and I circulated his number to everybody. Call my father. And my all children have been calling internationally him daily. So that's the happiness we gave him. He was very happy with his journey of cancer relief. So how this is how you can take along your parents when they are not well, because they have given so much to you. Now it's your turn to give to the society. And that's not very difficult. It's just a feeling. It's just a feeling. One day they are going to leave you. You don't know which day is that. So true. And this has given the example also that you are the true model for your parents कि जो पेरेंट्स देते हैं ना वो घूम के हमको भी उनको देना चाहिए. मतलब जैसे उन्होंने देना चाहिए. लव अफेक्शन केयर जो हमारे बचपन के टाइम पे हमको दिया है द सेम थिंग यू हैव बीन नर्चरिंग देम and you have been giving both of them with the help of your siblings. And मतलब I can seriously say this that he was a truly blessed father to have a daughter like. Really. Yes, my mother also have been calling me diamond daughter.
And after my father went, we have been taking special care of our mother. Special care means giving time. And I've seen children taking care of their parents. It's not that all children are bad, but they need your time. You just sit with them for 10 minutes, 20 minutes, talk to them. That's what they want. That's give them happiness. So I've been giving special time to my mother, talking to her for hours. And in the meanwhile, she has been talking about problem of her friends and all and their family. So that's what she thought I can do for the society. Right. Once my mother went, then I was almost in depression. That's the void which is created when you lose your loved ones. So it's very difficult to come out of that void. Yeah. Then I thought you should do things which they want you to do. My mother wanted me to do it socially, publicly. Then I started my podcast. Then I wrote two books. Then, then I publicly started meeting and solving people problems. So sweet, so sweet. And this is the biggest learning for those children at our age, that जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं, लेट देम लीव टू द ओल्ड एज। वाई? Yes. मतलब मेरे इस इसमें इतना इमोशनल होकर ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट वाई? क्योंकि जो उन्होंने आपको दिया है, हो सकता है आप अभी ये टाइम है आप उनको रिवर्ट बैक कर सकते हैं। वंस दे लीव, फिर आपको जिंदगी भर वो टाइम कभी नहीं मिल पाएगा कि आप वो उनको कभी एक वापस फिर नहीं आएगा। वो कभी नहीं आएगा। एंड बहुत यू सारे बच्चे कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर आपके पास टाइम भी रहेगा, लेकिन वो लोग नहीं रहेंगे सो जिनको आप टाइम देना चाहोगे। सो टाइम निकल आता है। जो आपकी प्रायोरिटी रहेगी उसके लिए तो टाइम निकल आएगा। यू हैव अ बेबी, यू वांट टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे, यू हैव टाइम ऑल द टाइम टू हैव देयर सेलिब्रेशन एंड बलून लगाने का, करने का, होटल में जाने का, सेलिब्रेशंस का आपके पास टाइम होता है। पेरेंट्स को तो कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट 10 मिनट ऑफ योर्स, दैट्स इट। कुछ भी नहीं चाहिए, दैट गिव देम हैप्पीनेस। दे लुक फॉर यू कि कभी हमारे पास हमारे से बात कर ले, बस बात करने का ही सिलसिला है। कम्युनिकेशन इज द ओनली थिंग, एंड कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी रिलेशन। आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होती वही रिलेशन खराब होती है। अगर आपको रिलेशनशिप में सिबलिंग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कहीं आपको लगता है कि कुछ खराब हो रहा है, जस्ट टॉक टू देम। और उन बच्चों से या बड़ों से भी मैं ये कहती हूँ कि जो मेरे पास आते हैं जिनको प्रॉब्लम है, मैं कहती हूँ जस्ट स्पीक योर हार्ट आउट। किसी से भी बात करो, कोई भी, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई मॉम है, कोई सिस्टर है, जिसके साथ आप बात कर सकते हो, आप कर दो। आप ये मत सोचो कि वो कहीं ना कर दे, अपना लिक्विडेट कर दो, लेट इट गो आउट। आपका हार्ट लाइट करो, हील योर सेल्फ, अपने आप को हील कर लो। और अगर आपको लगता है यू आर इन सम कॉम्प्लेक्स, तो मैं बहुत से लोगों को ऐसे करती हूँ कि स्टैंड इन द मिरर, साइड ऑफ मिरर, एंड से समथिंग, बोल दो, सब कुछ बोल दो, या फिर लिख दो, लिख के रख दो, या टर्न इट ऑफ, इट्स आउट फ्रॉम योर हार्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मीन्स द मतलब इतनी छोटी सी बात में आपने इतने सारे टिप्स दे दिए। एंड दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग फॉर द जनरेशन लाइक अस ऑल्सो, कि वंस द टाइम हैज गॉन विल नेवर कम। अगर चीजें टाइम रहते ही रिपेयर हो सकती हैं तो उनको वहीं के वहीं कीजिए। अदरवाइज द पीपल विल लिव इन अ गिल्ट कि काश हम ये कर लेते राइट, तो, काश हमारे साथ ऐसा हो जाता तो, काश हमने पापा के साथ राइट, इतना टाइम बिता लिया होता, काश हमने मम्मी के साथ ये कर बिताइए। लिया होता। तो वो चीज जैसे आपने बोला, कम्युनिकेशन इज द ओनली थेरेपी फॉर दैट। ये ओपन कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा, चाहे किसी के साथ भी हो, तो वो चीज की बॉन्डिंग भी नहीं बन जाती है और आपकी स्ट्रॉन्ग वो भी नहीं हो पाती। Thank you so much for giving these golden nuggets to the audience also, or from your life experiences. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये है कि जैसे हम सेल्फ केयर की बात करते हैं, अब जब हम विमेन की बात कर रहे हैं तो विमेन जो है ना कभी कभार जो है अपने आप को सेल्फ केयर में प्रायोरिटाइज करने के लिए सोचने में पड़ जाती है। अगर मम्मी ने ये कह दिया तो, या सासू जी ने ऐसा कर दिया तो, या सोसाइटी क्या सोचेगी,
अगर मैं काम काज छोड़ के थोड़ी देर बैठ के टीवी देख लूंगी तो घर पे ससुर जी क्या बोले। मतलब ये जो एक गिल्ट या एक बाउंडेशन आ जाती है, उन चीजों से कैसे निकले, उस गिल्ट से यस। या उन बाउंडेशन से। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जर्नी हमारी यही से, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इन्हीं चीजों से हम बाउंडेड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वी से यस टू थिंग्स वेयर वी वांट टू से नो। आवर हार्ट इज सेइंग नो, but we are saying yes, and we are doing it unwillingly. For years we are doing it unwillingly. So don't do that. Learn to say no. It's not that you become rude. It's not important to become rude. Very politely you can say no. But first you have to be firm from your heart that I don't want to do it. I will not do it. Firm. नो, यहाँ से फर्म नो हो जाएगी। फिर आप पोलाइटली कह दीजिए कि मुझे ये नहीं करना। दैट्स सेटिंग योर बाउंड्रीज एंड लर्निंग टू से नो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट कहाँ तक है। अगर आपको अपनी लिमिट से ज्यादा आप अपने आप को खींचोगे तो आप इमोशनली तो डिस्टर्ब हो ही जाओगे और फिजिकली भी हो जाओगे। बिकॉज देर विल कम ए टाइम जब आप वो मतलब ना भी नहीं कह पाओगे और कर भी नहीं पाओगे। राइट। सो इट्स a रेड अलर्ट फॉर everybody. The things you cannot do, you should learn to say no for that. And always set your boundaries, because you cannot do everything, you cannot be everywhere. Learn that. आप वो नहीं हो, आप गॉड भी नहीं हो। एंड गिल्ट में भी मत रहे। द गिल्ट यू वर टॉकिंग अबाउट, बहुत सारी चीजें लाइफ में हो जाती, सबके साथ हो जाती हैं। एक ग्रे साइड सबके साथ रहती है, ठीक है, उसको भी भूल जाइए। लर्न टू फॉरगिव योर सेल्फ। बी बी मोर काइंड टू योर सेल्फ। अपने आप में एक्सेप्टेंस लाइए। जैसे आप हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो भी मैं हूँ, आई एम गुड फॉर माई सेल्फ, मैं ठीक हूँ। उस सिचुएशन में अगर जो मैंने कुछ किया उस समय ऐसा ही सिचुएशन था, उस सिचुएशन में आपको लगता है मैंने गलत कर दिया, उस गिल्ट में मत रहिए। फॉर दैट टाइम आई डिड दैट, मे बी द सिचुएशन वाज सच, मे बी माय माइंड वाज सच, मे बी सराउंडिंग्स वर सच, हैपेंड सो हैपेंड, पास्ट, फॉरगेट अबाउट दैट। डोंट थिंक अबाउट दैट। लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। अपने आप को उन पुरानी बातों के लिए माफ कर दो। स्टार्ट योर न्यू चैप्टर। Bring your new boundaries and learn to say no to things which you don't want to. Do things which gives you happiness. You will find there are very small things which give us happiness. Sometimes a good coffee gives us happiness. Just take your coffee early in the morning for 10 minutes. 10 minutes you can take out for yourself. Have your sip nicely with that. और एक अच्छा खिला हुआ फूल भी आपको बहुत हैप्पीनेस दे सकता है। आपकी पसंद का एक गाना भी आपको हैप्पीनेस दे सकता है। लगा लीजिए, सुन लीजिए, अपने वो गाने सुनिए और काम करते रहिए। जो भी आप काम करना है वो करते रहिए। मी टाइम, आई टॉक अबाउट मी टाइम। आप देखिए कि पूरे दिन में आपने मी टाइम निकाला, आपने अपने लिए टाइम निकाला। बहुत सारे लोग अगर आज सोचेंगे ना मी, तो ज्यादातर लोगों का क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि मी टाइम निकालते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मी टाइम जब आप निकालेंगे, उसमें जो आपका हैप्पीनेस, वॉट एवर गिव यू हैप्पीनेस, डू दैट। फिल योर सोल, फिल योर सोल विद हैप्पीनेस, वट एवर गिव यू हैप्पीनेस। छोटी छोटी चीजों से भी आपको हैप्पीनेस मिलती है। इट्स इनसाइड, इट्स नॉट इन द आउटर वर्ल्ड, इट्स इनसाइड यू। फाइंड इट। अपने अंदर भी देखिए। आप देखिए, आपने बहुत सारे लेडीज स्पेशली होंगे जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है। आई हैव सीन लेडीज आफ्टर 35 जब हेल्थ डिओटेट होती है, जब उनको लगता है कि मेरे रिंकल्स स्टार्ट हो गए हैं, आई एम लुकिंग डार्कर, मेरी ये हो गई, तो देन दे गो टू द सैलून। दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज यू आर टेकिंग टू मच फ्रॉम योर बॉडी, यू आर नॉट हैविंग हेल्दी फूड,
So it's not that you have to buy something very costly from the market. There are solutions. Just two things. Take care of two things. जो नहीं खाना चाहिए वो मत खाओ, और जो अच्छा है हेल्थ के लिए वो थोड़ा ज्यादा खाओ। तो मैं हमेशा बोलती हूँ फूड के बारे में कि सब कुछ खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ तो सारी लाइफ खाओ। Right. कभी Oh, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। lovely, lovely, lovely. So sweet, so lovely. And this thing I have also resonated a lot from your conversation कि मतलब मेरी लाइफ में भी कभी कभार ना ऐसा टाइम आया था यार, कभी इसको बुरा ना लग जाए तो हम यस पे किए जा रहे हैं। बट वंस यू गेट हर्ट और थोड़ा मतलब उस चीज का सेटबैक जब आपको मिल जाता है, तो देन यू गेट अ लेसन ऑल्सो कि मैं पहले ही ना कर देती तो शायद ऐसा ना होता। तो ये चीज People will understand you. Once you will start doing that, people will understand you that your personality is such. They will not talk much about you. And if they are talking, how does it matter you? It should not matter you. Don't look for validation in others. Accept yourself. You need not to look acceptance in others. Accept yourself the way you are. And keep learning and improving yourself. अपने आप को इम्प्रूव भी करते रहें, लेकिन दूसरों की वैलिडेशन के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना है। so true, so true. The biggest mantra you have given, that stop taking validations from the others. किसी से validation मत लो, सिर्फ आपको जो अच्छा लगता है, you yourself are quite mature to take the decisions also. कहाँ आपको humble होके no बोलना है, कहाँ आपको अपना 100% देना है, तो आप उस तरीके से चीजों को segregate करना शुरू कर दीजिए, especially for the लेडीज और बेटियां और बहुएं। फॉर दैट वी आर सजेस्टिंग कि अपने माइंड में ये चीज नहीं रखना चाहिए कि हाँ, फियर जो आ जाता है आपके माइंड में कि मैंने अगर ये किया तो सासू जी ऐसा बोल देंगी, या मैंने ऐसा किया तो ससुर जी को ये हो जाएगा, या मेरे हस्बैंड डांट देंगे। तो नहीं, आप एक अपना प्रायोरिटाइजेशन सेट करके रखिए, अपना मी टाइम निकाल के रखिए, एंड हैव एन ओपन डिस्कशन विद योर फैमिली कि हाँ, मेरा ये यस, टाइम मेरा अपना टाइम है, उस पर मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। द रेस्ट डे इज ऑल फॉर यू। तो वो आपका यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद उठाना भी इजी हो जाएगा। तो इजी हो जाएगा, क्योंकि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, ले भी नहीं सकते। देर विल सो कम ए टाइम जब आप कुछ भी नहीं ले पाएंगे। आज तब आपकी बॉडी जवाब दे देगी। अभी आप सब कुछ कर रहे हैं तो आपको कोई मेडल मिल रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। देर इज नथिंग सच, आई थिंक। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फ्रॉम गॉड साइड। दिस इज ए लेसन, दिस इज ए लर्निंग। गॉड सेज टू यू, आई हैव गिवन यू ए ब्यूटीफुल बॉडी, टेक केयर ऑफ इट। I have given you happiness, it's inside, don't look outside. So it's all there, it's all within you. You analyze yourself, introspect, see, self reflection करें, सेल्फ कंपैशन लाएं अपने अंदर अपने लिए, तो आपको सब अच्छा लगेगा। गिव ए मिरर टेस्ट, आई थिंक। आप मिरर में देखें, तो कभी आप देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे मेरा रंग थोड़ा इतना अच्छा नहीं है शायद। आई एम नॉट फेयर, माई आईज आर स्मॉल एंड समथिंग एंड दैट। तो आप, अगर आपको ऐसा कहीं लगता है तो आप कहें, अपने आप से कहें कि आई एम गुड इनफ फॉर माई सेल्फ, बिकॉज मेरे को किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए। सो आप जब ये फील करना शुरू करेंगे तो अंदर से भी आपका वो बन जाएगा, और आपका एक ऑरा बनेगा। सो विच इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड, you will reflect that. When you will go out, when you will talk about that, people will look at you. They will not look at your beauty. They will look the way you talk, what you are talking, how you are behaving. There are other things also. absolutely, absolutely. The great thing you have said about this, and as we have come to the last of the session also of this recording also, कि मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी यार। जैसे हम इतने टाइम से सेल्फ केयर की बात कर रहे थे, अब हमने ये तो बात कर ली कि विमेन को क्या क्या करना चाहिए। आई वुड विश कि आप 3 गोल्डन नगेट्स हमारी सोसाइटी या उन फैमिलीज के लिए बताइए, या उन फ्रेंड्स के लिए बताइए कि उनको कैसे जो है गर्ल्स को या विमेन को सपोर्ट करना चाहिए इन चीजों में। उनको भी देखिए, अ, जो गर्ल्स और वुमेन है, पहले तो ये जो छोटे बच्चे हैं उन्हीं से स्टार्ट हो जाता है पेरेंटिंग में। पेरेंटिंग में आप गर्ल और बॉय में कोई डिफरेंस मत रखिए। जो बॉयज करते हैं, जो गर्ल्स करते हैं, आप उनको करने दीजिए। ऐसा नहीं कि बॉयज, गर्ल्स सिर्फ किचन में काम करेंगी, बॉयज भी करेंगे।
इफ शी इज कटिंग द वेजिटेबल्स, बॉय विल ऑल्सो कट द वेजिटेबल। उसको भी सिखाइए किचन का काम, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं करिए कि ये तो वेजिटेबल कट करेगी और तुम जाओ बॉल से खेलो बाहर। डोंट डू दैट, बिकॉज डिफरेंशिएशन स्टार्ट एट होम। पहले आप घर से ही स्टार्ट कर देते हैं, इसको पहले बंद करिए। आप अपनी डॉटर का सेल्फ एस्टीम खत्म कर रहे हैं अपने ही घर से। Absolutely. फिर कोई आया है कुछ है तो आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, तुम ऊंचा मत बोलो, तुम सॉफ्ट बोलो। डोंट डू दैट। उनकी पर्सनैलिटी बनने दो, जैसे भी बन रही हो। दे आर गुड फॉर देमसेल्फ। आपके करने से भी कुछ होगा नहीं वैसे। मैं बता दूं, बच्चे जैसे बनने होते हैं वैसे बन जाते हैं। सो डोंट टेक दैट प्रेशर ऑन यू। Right. Whatever they are learning, you are teaching them so many things, but they are learning from school also, from teachers also, from their friends also, from society also. They are grasping things from so many Sources. places. Right. So you cannot control that thing, and don't take that burden on yourself. Just leave that. You just have to take a check so that वो कहीं गलत हैबिट में ना हो जाए। ये मैं जरूर कहती हूँ कि इतना ध्यान रखें। बाकी अब उनको थोड़ा फ्री छोड़ें, अपनी कार्बन कॉपीज बनाने की कोशिश मत करें, उनकी पर्सनैलिटी अलग बनने दें। True. सो वैसे बनना चाहते हैं वो बने। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि तुम यही लो, मतलब यहाँ तक कि उनके कैरिकुलम में वो उनको सब्जेक्ट कौन से लेने चाहिए क्या, वो सब भी वो डिसाइड करते हैं। तो इतने लेवल तक होता है कि बच्चों के एग्जाम नहीं होते, पेरेंट्स के एग्जाम होते हैं, बोर्ड्स Right. पेरेंट्स के चल रहे होते हैं। True. तो टेक इट लाइट। आप बच्चों के 70-80% मार्क्स इज मोर देन इनफ। उनको कुछ और स्किल्स सीखने दें, वो उनके काम आएंगी। और आप देखें कि वो किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में बेटर है। एंड देन द रोल स्टार्ट्स फ्रॉम फादर ऑल्सो। आई थिंक रोल ऑफ फादर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जैसे फादर में मतलब एक रहता है, जैसे जो उन्होंने फेस किया होता है अपनी लाइफ में। बहुत सारे मैंने ऐसे मीम देखे फादर डेज पे आते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो फादर डे होता नहीं था, एक थप्पड़ मार के बता देते थे कि हम फादर हैं। सो आई डोंट लाइक इट। मुझे लगता है कि व्हाट्स गुड इन दैट एंड व्हाट्स अबाउट व्हाट टू लव अबाउट दैट, मतलब ये आपने सीखा और दिस इज वेरी लाइक इट इज कॉमन फॉर यू, यू डोंट फाइंड इट बैड। सो यू आप भी आगे ऐसे चलते हैं। दैट ड्रामा गोज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, which is not good. If you have felt something bad in parenting of your parents, you should not do that. You should be very conscious in your parenting कि मैं तो नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे चलूंगा। और बहुत सारे बच्चे गर्ल्स के साथ मैंने एक ऐसा बनाया भी था रील कि गर्ल्स के साथ मदर मदर अटैच हो जाती हैं, उनकी जो ग्रोइंग एज में उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो मदर के साथ बात कर लेती हैं गर्ल्स। लेकिन बॉयज काफी लोनली हो जाते हैं, सो दे गो टू द दे रीच देयर फ्रेंड्स जिनका मेंटल लेवल भी उतना ही है जितना उनका है। तो दे ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम देयर। सो हेयर इज द रोल ऑफ द फादर। फादर का उनकी को भी उनके साथ इतना ही अटैच होना चाहिए कि वो बाहर से किसी गलत हैबिट में ना पड़े। वो उनको भी ऐसा मिलना चाहिए यहाँ से। तो थोड़ा सा फादर का भी रोल इसमें रहता है। ऐसे ही ग्रैंड पेरेंट्स का रहता है, ग्रैंड पेरेंट्स भी अपनी जो भी हैं वो भी बच्चों के लिए हेल्प करें, मुझे ऐसा लगता है। सो आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आल्सो Yes, वी yes. कैन टॉक अबाउट। Right. But and I'm sorry to stop you, but yes, the time limit is very low. And the great nuggets you have shared that the whole family should come together to support a girl child. And if a boy is also there in that family, तो उसको भी ये चीज की awareness दीजिए कि how to handle the sister. अपनी सिस्टर को कैसे आपको यस, हैंडल करना है आगे जाके। तो इसी हैंडल के लिए मैम करना मैं राइट। आपको नेक्स्ट उसमें फिर से बुलाऊंगी कि हम और इसमें और डिटेल में बात करें, बिकॉज यू हैव बीन सच अ लवली एंड अ प्योर सोल आई हैव कनेक्टेड कि मैं तो मतलब मन ही नहीं यू कर रहा सो मेरा ये मच। टॉक शो पर स्टॉप करने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग सच अ यूजफुल इंसाइट।